اس خیرآباد سے تعلق رکھنے والا شاعر آپ کے درمیان آیا، آپ نے اس کو اسی انداز میں سنا، اسی علاقے، اسی دیار، اسی ضلع سے ہمارے درمیان نوجوان شاعر جو پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی باقاعدہ طور پر محبتوں کے ساتھ سنا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے، اعزاز سے نوازا جاتا ہے، داد و تحسین وہ مانگتا نہیں بلکہ خود اپنے طور پر اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ سے وہ مانگ کر داد و تحسین حاصل کرتے ہیں یا آپ اپنے طور پر نوازتے ہیں۔ سنڈیلا لکھنؤ سے دور نہیں ہے، ادبی دنیا سے آپ کی خاص تعلق ہے اور دانشوروں کا مجمع ہے اور جامعۃ البشیر میں آپ کی حاضری ہے اور جیسے مخلص انسان کا قائم کردہ یہ ادارہ ہے، یہاں پر جو شاعر ایک بار پڑھتا ہے دوبارہ پڑھنے کی خواہش کرتا ہے۔ ہم آج آپ سے یہی امید لے کر شعراء کو پیش کرتے رہے ہیں۔ اب آج ہماری فہرست کا آج کے اس مشاعرے کی آخری کڑی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری مراد ہے اسد اعظمی سے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ ان کے حوالے، وہ آپ کے حوالے، آپ تک آپ سامعین تھے، اب ہم ناظرین ہیں، آپ کے داد و تحسین کے بھی اور ان کے کلام کے بھی۔ آپ کے سامنے مائک پر اسد اعظمی۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ہندوستان میں کرسیوں کا جھگڑا ہے، کرسیاں کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا، آپ یہ کرسیاں لے کر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔ مت چھوڑیے گا کرسی، آپ لے کر آئے، بچے اور آگے آ جاؤ، آپ سب آ جاؤ، تھوڑا سا جاگ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ بس یہ آخری کڑی حضرت مولانا قاری رضی الدین صاحب نے کہا آخری کڑی، میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ آئندہ پھر میں اس آپ کے پروگرام میں میری شرکت ہو۔ انشاءاللہ۔ جناب حاجی جمیل صاحب کی ڈھیر ساری محبت سر شام سے میں دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ تمام شعراء کے بیچ بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں کرنا، ماشاءاللہ کم وقت ایسا ہوتا ہے، کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنا وقت دیں اور اتنے دل جمعی کے ساتھ اتنے بڑے پروگرام کو 9 سے 10 دن تک سجائے رکھیں۔ بہت کم ایسا ہوا کرتا ہے، بڑے بڑے بزنس مین کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن مبارکباد کے مستحق ہیں جناب حاجی جمیل صاحب کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کو دیا، آپ سب کو دیا۔ آج کے وقت میں دین کو آگے بڑھانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں، لوگ وقت نہیں دے پاتے، نماز پڑھنے تک کا لوگ کو وقت نہیں ہے، لیکن حضرت ماشاءاللہ متقی پرہیزگار ہیں، ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں۔ خورشید انصاری صاحب کا حکم ہوا، میں آپ کے درمیان میں حاضر آیا۔ ہمارے شکیل غیابی صاحب تشریف فرما، کلیم طارق سیدن پوری، میرے دوست شرافت بسوانی، فہیم بیہانوی، ان تمام اپنے بھائیوں کی محبتیں، اور میں بہت کافی عرصے کے بعد آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ مجھے شاید یاد نہیں ہے کہ میں یہاں کب آیا تھا، لیکن آتے ہی مجھے شکیل غیابی صاحب جیسے ہی لکھنؤ میں ملاقات ہوئی تو بتایا کہ اسد بھائی بہت پڑھے لکھے ہیں یہاں پر، آپ کو پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا، آپ جب پڑھیے گا پہلا آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلا مصرع پڑھ دیتے ہیں، دوسرا مصرع پڑھ دیتے ہیں، بتانا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ یار بول تو دو اب سبحان اللہ، لیکن یہ سنڈیلا ہے، یہ لکھنؤ ہے، یہ ہردوئی کا علاقہ ہے۔ الحمدللہ ہردوئی کسی بھی تعارف کی محتاج ایسی زمین نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لکھنؤ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، پوری ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں ادب کا ایک گہوارہ اگر نکلتا ہے ہندوستان میں تو وہ لکھنؤ سے نکلتا ہے، اعظم گڑھ ہوتے ہوئے بہت دور تک پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ سب کو اس مطلب میں شریک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جیسا شکیل غیابی صاحب نے، قاری رضی الدین صاحب نے کہا ہے، کیا میں اسی سنڈیلا میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں مطلع ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر مجھے اجازت دے دے تو میں مطلع آپ تک پہنچاؤں۔ جی پیش کرتا ہوں یہاں سے مطلع بالخصوص پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر، اگر کچھ سیکھنے کو ملے طالب علموں میرے بھائیوں، آپ اللہ کے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، آپ کے حوالے کرتا ہوں، بالخصوص پیش کرتا ہوں، سنیں۔ دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر، دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر، تو
पहचान पैदा कर। तू मोमिन है तो मोमिन की अलग पहचान पैदा कर। इलाही दुश्मन इस्लाम का सर उठ रहा है फिर। अब अगले मिसरे में संडीला वालों आप सबको शरीक करता हूं। इलाही दुश्मन इस्लाम का सर उठ रहा है फिर। तू अब फिर हंज़ला खालिद जफर सलमान पैदा कर। क्या कहने आका साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। सलमान पैदा कर। तू अब फिर हंज़ला खालिद जफर सलमान पैदा कर। माशाअल्लाह हाजी जमील साहब ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, शकील गयावी साहब ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मुझे खुर्शीद गाजीपुरी तक का सफ़र तय करना है और मुझे रफ्ता रफ्ता खुर्शीद भाई की जेब तक पहुंचना है जी, क्योंकि पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले हिंदुस्तान में या तो बहुत मशहूर हैं या तो बहुत बदनाम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ऐसे कुछ नहीं हैं। हलाल कमाई है, ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी से शायरों पर खर्च भी करते हैं और दीन का भी बहुत बड़ा दाई है हमारा भाई खुर्शीद अंसारी। मैं बड़े भाई के हवाले से बहुत खूबसूरत सा 4 मिसरे और आप तक पहुंचाता हूं, पेश करता हूं खुर्शीद भाई। हकीकत क्या है तुम इंसाफ के मीज़ान में देखो। मुसलमान आज अपनी तारीख को भूल गया है। मुसलमान को ये खुद नहीं पता है कि हमारे आलो अहबाब कैसे गुजरे हैं, हिंदुस्तान में हम क्या थे, आज हम क्या हो गए हैं। पेश करता हूं यहां से, सुने। हकीकत क्या है तुम इंसाफ के मीज़ान में देखो। हमारी शान जाकर बद्र के मैदान में देखो। हमारी शान जाकर बद्र के मैदान में देखो। भतीजे को सजा देकर मलिक सलमान ये बोले। अब अगले मिसरे में जी आपको शरीक करता हूं। तो भतीजे को सजा देकर मलिक सलमान ये बोले। हर एक मसले का हल अल्लाह के कुरान में देखो। हर एक मसले, जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आप तमाम की मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद आपके दरमियान में आना हुआ है, लेकिन आप सब बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं यहाँ से अब सीधे सीधे नाते पाक का मतला बिलखुसूस पेश करता हूँ। मेरा जी चाह रहा है एक नाते पाक सुनाने का कारी साहब, क्योंकि आज मैं अक्सर व बेशतर हालात हाजरा की शायरी करता हूँ। कारी साहब भी जानते हैं, खुर्शीद अंसारी साहब भी जानते हैं, लेकिन वो सब बाद में होगा। पहले मैं चाह रहा हूँ कि कुछ नातिया कलाम आप सबको सुना दूँ। इजाज़त है आप सबकी? हाथ वाथ उठा दो थोड़ी देर के लिए यार। जी पेश करता हूँ यहाँ से, मतलब सुने। हबीबे खुदा आप हैं, रसूले खुदा आप हैं। हबीबे खुदा आप हैं, रसूले खुदा आप हैं। तेरा रुतबा क्या है नहीं जानते हैं, तेरा रुतबा क्या है नहीं जानते हैं, मगर इतना ईमान से मान
हैं। पहला बंद हाजिर करता हूँ, बतौर खास पेश करता हूँ, समाज फरमाए, थोड़ा सा इको दे दीजिए जी। हाजिर करता हूँ, सुने। है वल्लैल जुल्फे, सुनिएगा मिसरा पेश करता हूँ, बंद बतौर खास समाज फरमाए। है वल्लैल जुल्फे और वह शम्स चेहरा, है वल्लैल जुल्फे और वह शम्स चेहरा, है रश के गुलिस्तां तेरे दम से सहरा, है रश के गुलिस्तां तेरे दम से सहरा, चमकते हुए कहीं कशा चाँद तारे, चमकते हुए कहीं कशा चाँद तारे, रुखे मुस्तफा से मुनव्वर है सारे, रुखे मुस्तफा से मुनव्वर है सारे। जुलेखा नबी को अगर देख लेती, अब अगले मिसरे में आप सब शरीक होइएगा। जुलेखा नबी को अगर देख लेती तो दावा है मेरा न यूसुफ पे मरती, तो दावा है मेरा न यूसुफ पे मरती, वो बदरो दुजा आप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं असद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा आप हैं। अब खुदा की कसम मुझे लग गया कि मैं संडीला में हूँ जी। बहुत शुक्रिया, आप तमाम की मोहब्बतों का शुक्रिया। इतनी दूर से आप बुलाते हैं, मेहमानों को बुलाना बहुत आसान काम है, लेकिन मेहमानों को बुलाकर उनको इज्जत दे देना, उनको अफजाई कर देना, आप सब इतने मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सबसे बड़ी ख्वाहिश हमारी, सबसे बड़ी दिली तमन्ना जो हुआ करती है वो दादो तहसीन हुआ करती है। हमें आप खाना कम खिलाएं, पानी कम पिलाएं, लेकिन आप बस थोड़ी सी दादो तहसीन से जब नवाज देते हैं तो यही हमारी खुराक हुआ करती है। हकीकत खुर्शीद अंसारी साहब जानते हैं, शकील भाई जानते हैं, कारी रज़ीउद्दीन साहब जानते हैं, हमारे बड़े मोहतरम हाजी जमील साहब जानते हैं। पेश करता हूँ यहाँ से एक और बहुत खूबसूरत सा बंद पहुँचाता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी कड़ी है इस बंद में। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। यकीन से गुमा तक क्या कर सकते हैं हम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद की एक मीम तक हम नहीं लिख सकते। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत खूबसूरत सा बंदा आप तक पहुंचाता हूँ, सुने। यकीन से गुमा तक, नेहा से आया तक, यकीन से गुमा तक, नेहा से आया तक, ज़मीता फलक अज फलक ला मका तक, यकीन से गुमा तक, नेहा से आया तक, ज़मीता फलक अज फलक ला मका तक, मेरे मुस्तफा की है जलवा नुमाई, मेरे मुस्तफा की है जलवा नुमाई, रसूले खुदा की है फरमा रवाई, रसूले खुदा की है फरमा रवाई। आप सबके हवाले से थोड़ा सा आप सब बेदार हो जाए। कलीम भाई पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। यकीन से गुमा तक, नेहा से आया तक, ज़मीता फलक अज फलक ला मका तक, मेरे मुस्तफा की है जलवा नुमाई, रसूले खुदा की है फरमा रवाई, कलम रोशनाई हो शजरो समंदर। अब अगले मिसरे में आप सब जुड़ना। कलम रोशनाई हो शजरो समंदर, रकम फिर भी ना हो
सके नाते सरवर खुदा जाने क्या आप हैं हबीबे खुदा आप हैं वाह क्या कहने नारे तकबीर नारे तकबीर असद आजमी जिंदाबाद चलिए माशाल्लाह बड़ी देर के बाद कारी साहब को एक शेर समझ में आ गया जी आपका ही मोहब्बतों को शुक्रिया कारी साहब माशाल्लाह बड़ी देर के बाद आपने संडीला वालों को जगाने की कोशिश की इतनी देर से तो सिर्फ सारे शायर ही शायर जगा रहे हैं लेकिन सब जगह जगाए थे भैया अभी को आप जी नहीं मुसलमान तो जगते हुए सोता है जी मैं कहाँ से बोल गया आप सब समझदार हैं मुझे आप सब अहले इल्म है माशाल्लाह पेश करता हूँ यहाँ से सुने हबीबे खुदा आप हैं रसूले खुदा आप हैं आखिरी के बंद में बहुत खूबसूरत सा बंद है जो मुझे बेहद अजीज है आप सबको शरीक करता हूँ संडीला वालों मेरे प्यारे भाइयों मेरे बुजुर्ग मेरी माओ और बहनों पेश करता हूँ सुने निगाहे करम हो ओ शाहे मदीना सुनिएगा मिश्रा निगाहे करम हो ओ शाहे मदीना मेरा पार हो जाए टूटा सफीना मेरा पार हो जाए टूटा सफीना के मुश्किल यहाँ अब है हम सब का जीना के मुश्किल यहाँ अब है हम सब का जीना बिना आपके जिंदगी जिंदगी ना बिना आपके जिंदगी जिंदगी ना यतीमों के वाली गरीबों के मावा यतीमों के मल जा मेरे मुस्तफा आप हैं हबीबे खुदा आप हैं रसूले खुदा आप हैं हबीबे खुदा आप हैं रसूले खुदा आप हैं आइए चार मिसरे पढ़ता हूँ उसके बाद रफ्ता रफ्ता आप सबका जो दिल चाह रहा है सुनाने का इंशाल्लाह वही मैं सुनाऊंगा आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं यहाँ पे मैं जो पढ़ूंगा आप सब दादो तहसीन से नवाजेंगे मुझे उम्मीद है मुझे भरोसा है आप सबको अल्लाह सलामत रखे चार मिसरे आप सबकी माओ के हवाले से पढ़ता हूँ आप सब अपनी माओ से मोहब्बत करने वाले हैं पेश करता हूँ यहाँ से मतलब सुने कि अजर वो बेहिसाब पाएगा सुनिए कारी साहब अजर वो बेहिसाब पाएगा अजर वो बेहिसाब पाएगा मर्तबा लाजवाब पाएगा अगले के दो मिसरे में अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान है आपका आप सब अगर मोहब्बत करते होंगे तो मुझसे जुड़ जाएंगे आजमगढ़ के इस छोटे से बच्चे से जुड़ जाएंगे पेश करता हूँ सुने कि अजर वो बेहिसाब पाएगा मर्तबा लाजवाब पाएगा जो भी देखेगा प्यार से माँ को जो भी देखेगा प्यार से माँ को एक हज का सवाब पाएगा क्या कहने वाह 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 एक हज का सवाब पाए दो चार भाइयों ने ऐसा लग रहा है जैसे ठेका ले रखा हो यहाँ पर आने का आप सब तो ऐसा लग रहा है ईदी बकरीदी सब छुपा कर ही रखते हैं तभी मोदी जी नोटबंदी अचानक कर देते हैं आप सब खर्चा करें दिल खोल कर अल्लाह कंजूस लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्या बात है ऐसी बात वाह क्या कहने बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं थोड़ी सी और मोहब्बतें दे दें पैसा वैसा ना दे यार ये सब
कोई औकात नहीं आप सबकी मोहब्बतों के आगे पैसों की। हाजिर करता हूँ सुने। अजर वो बेहिसाब पाएगा, पाएगा मर्तबा लाजवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यार से माँ को एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा, पाएगा। आइए इन छोटे छोटे बच्चों के हवाले से एक मतला पेश करता हूँ, आप सब जुड़ जाएंगे। मतला हाजिर करता हूँ, बिलखुसूस पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। ऐ खुदा, 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 कि मैं बंदा आसी तेरा तू मेरा खुदा है। मैं बंदा आसी तेरा तू मेरा खुदा है। दूसरे मिसरे में कारी साहब आपको जुड़ना होगा। मैं बंदा आसी तेरा तू मेरा खुदा है मेरी ज़बां और तेरी हमदो सना है। ऐ खुदा, 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 तू बड़ा मेहरबान। अगले मिसरे में आप तमाम भाइयों को शरीक करता हूँ। कौन कौन ऐसा भाई मेरा है जो मदीने जाना चाहता है, मुझे हाथ उठाकर बता दे। सब जाना चाहते हैं, वाह क्या कहने। जी ऐसी जगह ही है कि आप सब जाना पसंद करेंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, अल्लाह हम सबको सआदत नसीब फरमाए कि हम सब मदीने की गलियों में सैर करें। पेश करता हूँ सुने। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तू बड़ा मेहरबान, के साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना। जुड़िएगा आप सब संडीला वालों। साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना। दिखला दे मेरी आंखों को तू मक्का मदीना। ऐ खुदा, 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 तू बड़ा मेहरबान। एक शेर और पढ़ता हूँ इन छोटे छोटे बच्चों के हवाले से। ये सरे शाम से जाग रहे हैं, इनमें से जितने इनाम हैं इन बच्चों को गिन कर मेरी तरफ से 10-10 रुपए दे दे, इनके लिए बहुत बड़ी रकम हो जाया करती है 10-10 रुपए। मदरसे के जितने तालिब इल्म यहाँ पर हैं, जितने भी उस्तादुल असातिज़ा हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि मदरसे के क्या हालात रहते हैं। इन बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। इस कमज़ोर, इस नाजुक वक्त में हिंदुस्तान में तमाम मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। पेश करता हूँ एक और बंदा आप तक पहुँचाता हूँ, समाअत फरमाए। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तू बड़ा मेहरबान, कि हम सब को मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। हम सब को मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। हम सब को मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। हम सब को मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। हाफिज हमें, आलिम हमें, मुफ्ती तू बना दे। ऐ खुदा, 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 कि तू चाहे तो कि पल में बदल जाए मुकद्दर। तू चाहे तो एक पल में बदल जाए मुकद्दर। तू चाहे तो एक पल में बदल जाए मुकद्दर। तू चाहे तो
कतरे से मैं बन जाऊं समंदर, ऐ खुदा। वाह क्या कहने। देखो असद भाई, अरे अरे भैया, हेलो, अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये जा नहीं रहे थे बल्कि जाकर देख रहे थे। मैं तो सिर्फ देख रहा था कि यार मेरी डिमांड है या नहीं है। क्या कहने। लेकिन माशाल्लाह आप सब इतनी आसानी से मुझे जाने नहीं देंगे। जी नहीं, कुछ फरमाइशें हैं शकील भाई, मैं इंशाल्लाह उन फरमाइशों को ज़रूर पूरा करूँगा। थोड़ा सा या तो माइक, शायर कह रहे थे कि माइक कुछ है हल्का सा मुतासिर हो रहा है, आवाज़ खींच रहा है उनका उनका। बहरहाल वो सब बातें एक तरफ, आप सबकी मोहब्बतें अगर मिल रही हैं कि तो ये माइक वाइक का क्या मसला है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप सब थोड़ी देर के लिए और जुड़ जाएंगे तो ये मुशायरा कामयाब हो चुका है, अल्लाह इसको और कामयाब करेगा। पेश करता हूँ यहाँ से एक मतलब एक शेर और पेश करता हूँ, उसके बाद जमजम का पानी आप सबको पिला देता हूँ इंशाल्लाह। जी अल्लाह आप सबको तौफीक दे, अल्लाह आप सबको सआदत दे। हाजिर करता हूँ यहाँ से एक मतलब और 2-3 शेर, एक मतलब एक शेर पढ़कर उसके बाद सीधे सीधे वो नातिया हमद। हाजिर करता हूँ यहाँ से मतलब सुने। ऐ प्यारी माँ तेरा चल। कौन कौन सुनना चाहता है इस 4 मिसरे को, जरा सा हाथ उठाकर मुझे बताए। बहुत शुक्रिया, सब अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले हैं। हाजिर करता हूँ सुने। ऐ प्यारी माँ तेरा चल, सभी आंचल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ तेरा चल, ऐ प्यारी माँ तेरा चल, सभी आंचल से अच्छा है। सभी आंचल से अच्छा है, लगा दे जो मुझे काजल, हर काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, वो हर काजल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा चल। और एक बहुत खूबसूरत सा शेर हाजी जमील साहब को अपने जहन में रखता हूँ, हाजी साहब के हवाले से आप तक पहुँचाता हूँ। हाजी साहब की नज़र कर रहा हूँ, ये शेर पेश करता हूँ। शकील भाई, खुर्शीद आलम भाई, आप सब के हवाले से, आप सब मेरे बड़े हैं, मेरे करम फरमा हैं, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, आप सबकी दुआएं मुझे चाहिए। पेश करता हूँ आप सबके हवाले से, समाज फरमाएं। अगर एक टाट पर 5 नमाजें पढ़ रही है तू। अगला मिसरा देखिएगा जमील भाई, अगला मिसरा देखिएगा, पेश करता हूँ सुने। अगर एक टाट पर 5 नमाजें पढ़ रही है तू, अगर एक टाट पर 5 नमाजें पढ़ रही है तो कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा चल, सभी आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल। आइए अब सीधे सीधे मेरा जो जी चाह रहा था एक नज्म सुनाने का, इंशाअल्लाह आप सब शरीक हो जाएंगे, आप सब जुड़ जाएंगे। आप सबका चेहरा देखकर लग रहा है कि आप सब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इंतजार में हैं, असद भाई कब उठा रहे हैं गेंद, हम कब पकड़ रहे हैं। बस यही आपकी कंडीशन इस वक्त है, इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा शेर आने वाला है कि हम दाद दें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इसी तरह आप सुनते रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। संडीला वालों मतलब पेश करता हूँ सुने। बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद। हम सब सहाबा के मानने वाले हैं,
दुनिया में जो सहाबा को नहीं मानता हम उसको नहीं मानते, सारे मसले एक तरफ, सारी बातें एक तरफ, जो सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं। पेश करता हूँ यहाँ से मतलब आप सब शरीक हो जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आज का ये नातिया मुशायरा कामयाब हो गया। पेश करता हूँ यहाँ से, सुने। बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा सारे मिलकर बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद। जिंदा थे वो, जिंदा है वो, जिंदा थे वो, जिंदा है वो, और रहेंगे जिंदाबाद। बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद। पहला बंदा आप सब सुने, संगीला वालों, लखनऊ वालों, हरदोई वालों, पेश करता हूं यहां से, सुने। के बाद रसुल नबियों के जिनका रुतबा है सबसे ऊंचा। कारी साहब आप जुड़े रहे मुझसे, आपको जुड़े रहना जरूरी है। पेश करता हूँ थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल 22 साल के नौजवान हो जाइए। पेश करता हूँ, सुने। के बाद रसुल नबियों के जिनका रुतबा है सबसे ऊंचा, बाद रसुल नबियों के जिनका रुतबा है सबसे ऊंचा, जिनकी आगोश उल्फत में है इस्लाम फला फूला, जिनकी आगोश उल्फत में है इस्लाम फला फूला। रज़ी अल्लाहु अन्हुम अनहु का तोहफा जिनको मिला, रज़ी अल्लाहु अन्हुम अनहु का तोहफा जिनको मिला, जिनके खून जिगर से अब तक, अब अगले मिसरे में जुड़िएगा, जिनके खून जिगर से अब तक, जिनके खून जिगर से अब तक दीन का है गुलशन आबाद। बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद। अल्लाह आपको चाचा सलामत रखे। आप माशाअल्लाह, मैंने तो कारी साहब को कह रहा था लेकिन आप 20 साल के नौजवानों का काम इस वक्त कर रहे हैं, सारे नौजवानों का काम आप कर रहे हैं। क्या कहने जी बहुत शुक्रिया। बस इन्हीं मोहब्बतों की ख्वाहिश आपसे है, यही मोहब्बतें मिलने वाली हैं और थोड़ी सी मोहब्बतें आप देंगे इंशाअल्लाह। अगला मिसरा जो आने वाला है वो एक एक मुसलमान, एक एक सच्चे मुसलमानों की बात होने वाली है। अगले मिसरे में आप सबका ईमान ताज़ा हो और सहाबा इकराम के बारे में कौन कौन सी बातें कही जाती हैं। लखनऊ में आप सब तारुफ के मुहताज नहीं हैं कि सहाबा इकराम को किस नजरिए से उनको गालियां दी जाती हैं। बहरहाल वो सब बातें एक तरफ, मैं सीधे सीधे यहाँ से बंद आप तक पहुंचाता हूँ, पेश करता हूँ, सुने। बोलो सहाबा जिंदाबाद, हुब्बे अली का दम भरने वाले ये सुन लो नादानो, अबू बकर फारूक उमर उस्मा हैदर को क्या जानो। अबू बकर, अगर मैं गलत हूँ कहीं से तो मुझे रोक दीजिएगा, बिला झिझक रोक दीजिएगा कारी साहब और हमारे हाजी जमील साहब। पेश करता हूँ, सुने। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो आप सब मुझे बताइएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। पेश करता हूँ, सुने। हुब्बे अली का दम भरने वाले ये सुन लो नादानो, अबू बकर फारूक उमर उस्मा हैदर को क्या जानो। सारे सहाबा में तुम इनको तरतीब अफजल जानो, सारे सहाबा में तुम इनको तरतीब अफजल जानो। होश में आ जाओ नादानो, होश में आ जाओ नादानो। अगर जान चली जाए सच बोलते हुए तो मुझे गवारा है, ऐसी जान मैं कुर्बान करता हूँ। होश में आ जाओ नादानो वरना हो जाओगे बर्बाद। बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा। अगला मिसरा
संडीला वालों आप बोलिएगा, बोलो सहाबा बोलो सहाबा बोलो सहाबा, जिंदा थे वो जिंदा है वो और रहेंगे, बोलो सहाबा जिंदाबाद बोलो सहाबा जिंदाबाद। के शम्मे फरोजा, सुनना शराफत, बहुत शराफत से बैठे हो, सुनो। शम्मे फरोजा बज़्म नबी के ये असहाब हमारे हैं। आप सब मदारिस के तलबा हैं, मुझे ज्यादा तमहीद करने की जरूरत नहीं है, आप सबके सामने पेश करता हूँ, सीधे सीधे सुने कि शम्मे फरोजा बज़्म नबी के ये असहाब हमारे हैं, माह मुनव्वर मेरे आका और असहाब सितारे सितारे। चला मिसरा बोलना चाहिए कारी साहब, आप हाजिर नहीं हैं यहाँ पे, आप हाजिर नहीं हैं यहाँ पे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, आप हाजिर हो जाइए, आप हाजिर हो जाइए जी। पेश करता हूँ उसमें शम्मे फरोजा बज़्म नबी के ये असहाब हमारे हैं, माह मुनव्वर मेरे आका और असहाब सितारे हैं, माह मुनव्वर मेरे आका और असहाब सितारे हैं, मशअल राह हिदायत के प्यारे असहाब ये सारे हैं, मशअल राह हिदायत के प्यारे असहाब ये सारे हैं, माह मुनव्वर मेरे आका और असहाब सितारे हैं। जब तक जान में जान है असद, जब तक जान में जान है असद, मैं भी बोलूंगा जिंदाबाद बोलो सहाबा 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अब मेरे करम फरमा मेरे मोहतरम मकाम हज़रत खुर्शीद अंसारी साहब का हुक्म, शकील गियावी भाई उनको भी ये नाते पाक बहुत पसंद है, कारी साहब को भी पसंद है, हाजी जमील साहब शायद गालिबन पहली बार सुनेंगे आप, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी पसंद किया जाता है जी। बहुत शुक्रिया आप सबकी आप दोनों एक दूसरे के लाजिम व मलज़ूम बन चुके हैं और शायर के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि आप हाजिर हो चुके हैं। हमारे असद भाई जो है ये भी बीड़ी वाले हैं। हाजी साहब से बहुत तारुफ हो रहा था। हाँ माशाल्लाह इनका ब्रांड चमेली है, क्या बात है। कई ब्रांड हम लोग के हैं, लेकिन अब चलिए वो सब चलिए सुल्तान ब्रांड भी मान लेता हूँ। सुल्तान भी है, उत्तम भी है। हाँ वही बता रहे हैं। अब दोबारा आप कहते कई ब्रांड है तो मैं रुस्तम भी नाम लेता। चलिए बहरहाल अल्लाह ताला अगर पैसा दे तो अपने राह में ही लगवाए। हाँ क्या बात है, ये बड़ी बात हुआ करती है। बहुत बेशक जी अल्लाह ताला दीन का काम हम सबसे ले, बेशक। जैसे हम सब जुड़े रहे, आप सबकी हम सब इसी तरह मदद करते रहे, हम सब आपके लिए इसी तरह 24 घंटे हाजिर रहे। पेश करता हूँ यहाँ से। अब मतलब आवाज़ तो बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, लेकिन इंशाअल्लाह आप सब थोड़ी सी और मोहब्बतें दे देंगे तो आवाज़ का कोई मसला नहीं है। पेश करता हूँ यहाँ से, सुने। वहाँ की फकीरी है रश के अमीरी, वहाँ की फकीरी है रश के अमीरी, वहीं पर बसर हो मेरी जिंदगानी, वहाँ की फकीरी है रश के अमीरी, वहीं पर बसर हो मेरी जिंदगानी। ऐ अल्लाह
क्या बात है। जी बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। पान खा खा कर कारी साहब दाद दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कारी साहब बड़े अच्छे दिल के मालिक हैं माशाल्लाह, जहाँ मिलते हैं अपना जान निछावर कर दिया करते हैं। पेश करता हूँ कारी साहब आपके हवाले से बहुत खूबसूरत संबंध आप सबको बेहद अजीज है, हमारे जमील भाई के हवाले से पेश करता हूँ, सुने। वहाँ चार सौ रहमतों के उजाले, वहाँ 400 रहमतों के उजाले, वहाँ जाके आते हैं तकदीर वाले, वहाँ जाके आते हैं तकदीर वाले। हमारे इम्तियाज़ भाई गोमती एजेंसी से माशाल्लाह इस पूरे प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम दिखाया जाएगा। इसमें मुबारकबाद और शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई का। पेश करता हूँ यहाँ से, सुने। वहाँ 400 रहमतों के उजाले, वहाँ जाके आते हैं तकदीर वाले, वहाँ का सवेरा करम की जमानत, वहाँ एक पल में बदलती है किस्मत, वो ऐसी जमीन आसमां जिसको चूमे, जहाँ से निकलता है जमजम का पानी, वो तैबा की गलियां, वो जमजम का पानी, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। जमजम का पानी। माशाल्लाह हमारे खुर्शीद भाई की बच्ची, हमारी बेटी माशाल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमा है, फरहत जहाँ माशाल्लाह हाफिज़ कुरान 15 पारा की हिफ्ज़ माशाल्लाह ये मुकम्मल कर चुकी है। आप सब इस बच्ची के लिए दुआ करें कि अल्लाह दीन का बहुत सारा काम इस बच्ची से ले। पेश करता हूँ यहाँ से, हाजिर करता हूँ खुर्शीद भाई, पेश करता हूँ बतौर खास मलाइज़ा फरमाए। वो गलियाँ वो महबूब दावर की क्या कहने, वाह क्या बात है। जमील भाई सुनिए, बिल्कुल डूब कर इश्क के साथ इस बात को सुनिए। हाजिर करता हूँ, सुने। वो गलियां वो महबूब दावर की गलियां, वो गलियां वो साकी ये कौसर की गलियां, वो गलियां वो साकी ये कौसर की गलियां, वो गलियां जहां नूर ही नूर हर सो अभी तक है जिनमें मोहम्मद की खुशबू, अभी तक करम की घटाओं के मंजर, अभी तक वही रुते है सदियों पुरानी, वो तैबा की गलियां वो ज़मज़म का पानी, वो तैबा की गलियां वो ज़मज़म का पानी। आइए, मैंने इस फरमाइश को भी 2 बंद मैंने पूरा किया। अब एक नाते पाक के भी बहुत ज़्यादा फरमाइश है, एक नाते पाक की जो इस्लामिया कॉलेज में माशाल्लाह बहुत मकबूल हुई। और जब भी मैं वहाँ आता हूँ तो जनाब ज़फ़र याब जिलानी साहब उस नाते पाक की फरमाइश कर दिया करते हैं। शकील गयावी साहब तशरीफ़ फरमा है, खुर्शीद भाई तशरीफ़ फरमा है। आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस आप सब जुड़ जाएं और कारी साहब आप ख़ास तौर से जुड़ें। जी जी, मैं बहुत शुरू से जुड़ा हुआ हूँ आपसे मतलब भाई। पेश करता हूँ, सुने जी। ये मुकम्मल सुनने की बात कर रहे हैं, ये बहरहाल हो सकता है मुकम्मल तरीके से कुछ नवाज भी दे हमको। जी हाजिर करता हूँ, मतलब पेश करता हूँ। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं, गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तौसीफ व सनाए शह अबरार में हर लहजा को हर बार। अरे अब तो मचल कर बोल दो सुभान अल्लाह। अब कहूँगा बोलने के लिए, क्योंकि
क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ जब ये नाते पाक पढ़ता हूँ, तो मैं नहीं समझ पाता कि आपको समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है। लेकिन संडीला वालों, मुझे आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं है कि आप समझ नहीं रहे होंगे। जब चाचा जैसे लोग समझ रहे हैं तो आप सब तो माशाल्लाह। जी चाचा सुनिए, पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुने। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो सरार के रहते हैं वो तौसीफ व सनाए शगे अबरार में घर लहजा गो घर बार वरना वो सैयद अली लसबी, हाँ वही उम्मी लक़बी, हाशमियों मुत्तलबी, वो अरबी वो करशी वो मदनी, और कहाँ हम सब गुनहगार। इश्क़ रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार, नबी रंग में रंग जाओ मेरे यार, अशरफी रंग में रंग जाओ मेरे यार। और हर इंसान की ख्वाहिश हुआ करती है कि अल्लाह उसे मुत्तकी बना दे, परहेजगार बना दे, रोज़ा बना दे, नमाजी बना दे, रोज़ादार बना दे। दोस्तों लेकिन नफ्स बीच में आ जाया करता है, और नफ्स का शिकवा, नफ्स की पूरी हकीकत, नफ्स के बारे में आप कारी साहब से पूछ सकते हैं। पेश करता हूँ, कारी साहब आपको नफ्स के बारे में अच्छी तरह बताएंगे। पेश करता हूँ, यहाँ से बंद सुने। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो, मुताहर हो, मुनव्वर हो, मुसफ़ा हो, मुजल्ला हो, मुज़क्का नूरे आला जो नजर आए, कहीं जलवाए रूए शहे अबरार। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो, मुताहर हो, मुनव्वर हो, मुसफ़ा हो, मुजल्ला हो, मुज़क्का नूरे आला जो नजर आए, कहीं जलवाए रूए शहे अबरार। जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार, मोहम्मदी रंग में रंग जाओ मेरे यार। अक्ल तो तनकीद से फुर्सत नहीं, क्या बात है। अरे इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। बंद पेश करता हूँ। पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ना हो। पेश करता हूँ, बंद समात फरमाएं कि इश्क के रंग में रंग जाए, मुहाजिर हो के पख्तून, बलोची हो के पंजाबी के बंगाली के गुजराती, मैमन हो के हिंदी हो के सिंधी, किसी खित्ते के कबीले की ज़बान, इससे नहीं कोई सरोकार। इश्क के रंग में रंग जाए, मुहाजिर हो के पख्तूनी, बलोची हो के पंजाबी के बंगाली के गुजराती के, मैमन हो के हिंदी हो के सिंधी, जिस खित्ते के कबीले की ज़बान, इससे नहीं कोई सरोकार। जामे इश्क मोहम्मद जो पहन लेता है, हर खार को वो फूल बना लेता है, दुनिया को झुका लेता है, करता है जमाने को मोहब्बत का शिकार। इश्क के जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बनी तो जहां तुम्हारे लिए, दामन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, चमन में फजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनों फलक समाओ समा, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए सूरज को घेर दिया, डूबे हुए दिन को असर किया, ये तबो तवा तुम्हारे लिए,
نہ روح زمین نہ عرش بری نہ لوح مبین کہیں بھی کوئی خبر ہی نہیں جو رمدے کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے کہ لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کہ ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرے زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سجداتا میرے آقا نہ ولی ہو نہ قلندر نہ ولی ہو نہ قلندر میرے جیسے تو بہت ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں جو تیرے در پہ کھڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک کہ اسی آیہ توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تضمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان آئیے مقطع پیش کرتا ہوں سنیں اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق کے ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات زبانوں قلم و فکر و خیال سنیے گا حضرت اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات زبانوں قلم و فکر و خیال ان کی مدحت تو قاری صاحب ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار محمدی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اشرفی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار محمدی رنگ میں